وادی کشمیر کے نوجوان زندگی کے ہر شعبے میں جہاں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، وہیں گانے بجانے میں بھی یہاں کے نوجوان پیچھے نہیں ہیں، لیکن ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے پلیٹ فارم کی کمی ہے۔ تاہم اب نیوز 18 اردو کی جانب سے کشمیر کے نوجوانوں کے لیے شروع ہونے والے کشمیر کے ستارے ٹیلنٹ ہنٹ شو کے ذریعے اپنا ہنر دکھانے کے لیے نوجوان تیار کر رہے ہیں۔ دیکھیے بلال خان کی یہ رپورٹ۔ ضلع پلوامہ کے وانپورہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ریاض احمد نامی نوجوان اگرچہ خوبصورت آواز رکھتے ہیں، لیکن آج تک انہیں کسی بھی بہتر پلیٹ فارم پر اپنا ہنر دکھانے کا موقع فراہم نہیں ہوا۔ اب ریاض بھی نیوز 18 اردو کے ٹیلنٹ ہنٹ شو کشمیر کے ستارے کے ذریعے زمانے کو اپنی صلاحیتوں سے واقف کرائیں گے۔ ریاض بھی دیگر نوجوانوں کی طرح اپنے گانے کے ویڈیو آج کل تیار کر رہے ہیں۔ بچپن سے گانے کا بہت شوق تھا، تو یہاں اس سے پہلے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جس سے ہم آگے بڑھ سکتے تھے۔ میں اس میں بہت محنت کرنا چاہتا تھا، جیسے باہر ہیں ہمارے باہر انڈیا میں، وہاں بہت سارے پلیٹ فارم ہیں اس کے، مگر یہاں ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں بنا اس سے پہلے۔ یہ بہت ایک اچھا پلیٹ فارم آیا ہے کشمیر میں، جس سے ہم سب اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ریاض احمد بیٹس میوزک کے ذریعے کشمیری گانوں کو نئے انداز میں گانے کی بہترین کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ ریاض کو ساز بجانے کا بھی بہت شوق ہے، لیکن گھر کی مالی حالت ٹھیک نہ ہونے کے سبب وہ آج تک کوئی بھی ساز خریدنے سے قاصر رہے۔ ریاض کے گھر والے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ تو ابھی جو نیوز 18 اردو یہاں پہ ایک پلیٹ فارم لے کے آ رہے ہیں، جس کے تھرو مطلب یہ آگے جا سکتے ہیں، ان کا ٹیلنٹ آگے لے جا سکتے ہیں، تو ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں۔ ان کا ٹیلنٹ کشمیر میں بہت ہے، تو اس کو آگے جانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو ابھی نیوز 18 اردو لے کے آ رہے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم لے کے آ رہے ہیں جس سے ہم آگے جا سکتے ہیں۔ کشمیری گانوں کو روایتی صوفیانہ موسیقی کے علاوہ نوجوان گلوکار پرانے گانوں کو بھی نئے طرز پر گا رہے ہیں۔ نیوز 18 اردو کے لیے پلوامہ سے بلال خان کی رپورٹ۔ کشمیر کے نوجوانوں کے ہنر کو پہچاننے اور اسے دنیا سے روشناس کرانے کے لیے نیوز 18 اردو کا ٹیلنٹ ہنٹ شو کشمیر کے ستارے بہت جلد شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ کشمیر کی دلکش آواز ہیں تو نیوز 18 اردو کے پلیٹ فارم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب کشمیر میں صوفیانہ، فوک، ریپ، روایتی یا ہلکی کلاسیکی موسیقی کا ویڈیو ریکارڈ کر کے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر روانہ کریں۔ واضح ہے کہ فلمی نغموں کو شامل نہیں کیا جائے گا، کشمیری فوک کو ترجیح دی جائے گی۔ کشمیر کے ستارے کا حصہ بنیے اور اپنی آواز کو بلند پرواز دیجیے۔ اپنے ویڈیو کے ساتھ اپنا نام، پتہ اور فون نمبر ضرور لکھیں۔ تبلے اور نٹ کی تھاپ سے جڑیں گے رباب اور جل ترنگ، سارنگی اور ستار کے ساتھ ملے گا سنتور کا رنگ، اور جھوم کے گائیں گے آواز کے ملنگ۔ کشمیر میں ساز و آواز سے نکلیں گے سکون کے دھارے، جب جھل ملائیں گے کشمیر کے ستارے۔ اگر آپ میں ہے ساز و آواز کا ہنر تو ابھی واٹس ایپ کریں اپنا ویڈیو نیوز 18 اردو کے ٹیلنٹ ہنٹ شو میں، اور زمانے کو دکھا دیں کہ آپ ہیں کشمیر کے ستارے۔ جلد آ رہا ہے صرف نیوز 18 اردو پر۔ ہدایت کار مشتاق علی احمد خان نے حکومت کی جانب سے ٹیلی ویژن پروگرام اور فلم کی شوٹنگ کی اجازت دیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے شوٹنگ کے دوران کووڈ گائیڈ لائن اور SOPs پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ گورنمنٹ کے اس فیصلے کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، جس میں انہوں نے فلم اور ٹیلی ویژن کی شوٹنگ کی اجازت دے دی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ SOPs یا ہیلتھ کی جو بھی گائیڈ لائنز گورنمنٹ ایشو کرتی ہے وقتاً فوقتاً، جیسے کہ ماسک پہننا، 6 فٹ کی دوری رکھنا، سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہنا اور بار بار ہاتھ دھوتے رہنا، اس پہ ہمیں پوری طرح سے اور اچھی طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک بار پھر میں گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے فلم اور ٹیلی ویژن کی شوٹنگ کی اجازت دے دی ہے۔
जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गुरेज में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के दौरान लोगों की जानों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए 50 के करीब कम्युनिटी बंकर मुकम्मल होने के करीब है। उम्मीद की जा रही है कि 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रहे ये बंकर इसी माह के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज और बख्तूर इलाकों में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से मुतादिद बार लोगों को जानी व माली नुकसान से दो चार होना पड़ा। दरियासना गुरेज के मुकामी आबादी ने कम्युनिटी बंकर तामीर करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए मुतालबा किया कि गुरेज में इंफरादी सतह पर मजीद बंकर तामीर किए जाएं, जबकि तुलेल के लोगों का मुतालबा है कि तुलेल के ऊपरी इलाकों में भी कम्युनिटी बंकर तामीर किए जाएं। उधर DC बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद का कहना है कि गुरेज में मजीद बंकर तामीर करने के हवाले से अवामी मुतालबे को पेश नज़र रख कर एक मनसूबे को हुकूमत के पास भेज दिया गया है। जो बंकर इंडिविजुअल बंकर मिलने चाहिए, फी घर 3 घरों में एक एक। तो इस वजह से क्योंकि इधर शलिंग का खतरा होता है, जब शलिंग होती है वो हम ही जानते हैं हमारा दिन कैसे गुजरता है और हम कैसे दिन गुजारते हैं। तो गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं, बराई मेहरबानी करके हमें इंडिविजुअल बंकर भी दीजिए। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो बंकर जो है वो बिल्कुल कम पड़ रहे हैं और उनके लिए ज़मीन का भी मिलना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि 2-2, 3-3 घरों के बीच में अगर बंकर दिए जाएंगे तो उनमें ज़मीन का भी जो मसला है वो भी हल हो जाएगा और लोगों की जान भी बच जाएगी। तो हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद में, चाहे हमारा बख्तूर एरिया हो या गुरेज हो या तिलेल का जो नीचे लवर एरिया हो, वहाँ पे हमें इस वक्त अच्छी खासी तादाद में ये बंकर्स, कम्युनिटी बंकर्स तामीर हो रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारा जो तिलेल का मैक्सिमम एरिया है वहाँ पे अभी तक कोई भी कम्युनिटी बंकर्स तामीर नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से कि हम कि उस एरिया में भी कम से कम हर गाँव के अंदर एक कम्युनिटी बंकर किसी। बाड़ीपुरा के डांगरपुरा सुमल इलाके में फौज की 5 राष्ट्रीय राइफल की जानिब से बच्चों के लिए आज खेल कूद के मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़िद किए गए। इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी लोगों का कहना था कि कोरोना वायरस के चलते इनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और ऐसे में बच्चों को खेल कूद की सरगर्मियों में मशगूल रखने से वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि खेल कूद में मशगूल रहने से इनके बच्चों का ज़हनी तनाव काफ़ी हद तक कम होगा। मुकामी लोगों का मुतालबा था कि इस तरह के प्रोग्राम लगातार मुनक़िद होने चाहिए। हम आज खुश हो गए। आज बहुत 2-3 महीने के बाद ये प्रोग्राम लग गया। इससे पहले लगते थे, उसके बाद ये कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम बंद हो गए, आज फिर शुरू हो गए। लेकिन हम यही इल्तिजा करते हैं कि ये प्रोग्राम कम से कम महीने में एक बार होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक रहेगा। और स्कूल बंद हो गए, इसकी वजह से अगर हम स्पोर्ट्स में रहेंगे हमारे बच्चे, तो ये क्या है कि बच्चे ठीक रहेंगे, नशा नहीं करेंगे। दोबजन शोपियां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और दोबजन के खाना बदोश तकरीबन पालतू जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। आज 62 राष्ट्रीय राइफल की एक टीम ने दोबजन में एक मुफ्त वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया। यहाँ मुकामी अफराद के अलावा खाना बदोशों ने भी शिरकत की और इसके बारे में जानकारी हासिल की। फौज के जवानों ने कोविड-19 और इस वायरस के फैलाव पर काबू पाने के तरीक़ेकार के बारे में भी मालूमात फराहम की। फौज ने मुकामी वेटरनरी डॉक्टरों और दीगर वेटरनरी मुकामी तकनीकी अमले का भी बंदोबस्त किया। तरफ से 62 RR वालों का, तो यहाँ पर इनमें बहुत सहूलियत पहुँचाई है। इस कोविड की बीमारी में भी यहाँ पर गाड़ियों का अरेंजमेंट इनमें रखा हुआ है, दवाई का रखा हुआ है, माल मवेशी वहाँ से लोगों को बेचारों को ला रहे हैं और पहुँचा रहे हैं और दवाई भी बहुत अच्छे ढंग से दे रहे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और दुबजन आर्मी वालों ने बहुत हेल्प किया है। 62 RR ने किया है और इसमें हमारी जो बैग दुबजन की पोस्ट की 62 RR वाले जो यहाँ पर हैं, इनसे हमें बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे पहले भी वो पैकेज चावल दाल हर एक जो था, इन्होंने हर एक आदमी को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पहुँचाया है। हम कोई दवाई के लिए जा सकते थे, ना कोई माल की, ना कोई राशन के लिए, वो सब फैसिलिटी जो है हमें यहाँ ही पास 62 RR ने जो है वो हमें यहाँ पहुँचाई। और आर्मी 62 डोगरा, और हम सबसे पहले 62 की जो बात है, इन्होंने ये आर्मी हमारी ने जो ये कैंप यहाँ पर लगाया है, बहुत काफ़ी सालों के बाद इस कैंप का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पटन के ब्लाक खुर शिराबाद में नरेगा मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। महकमे देही तरक्की में काम कर रहे नरेगा मुलाजमीन की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल के साथ साथ एहतजाजी धरने भी जारी हैं। एहतजाजियों का कहना है कि पिछले 12 सालों से वो महकमे देही तरक्की में आर्जी बुनियादों पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ताम वादे किए जाने के बावजूद आज तक इन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया।
हम लोग यहाँ ऑलमोस्ट 13 ईयर से काम कर रहे हैं और बिना थके काम हो रहा है, और लेकिन इसके एवज हमें सफ़र कराया जा रहा है कंटिन्यूसली, और हमारे वेलफेयर के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। जस्ट हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हमारी जो है एज लिमिट अब इतना क्रॉस कर चुकी है कि अब हमें कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। हमारी और हमारी फैमिलीज़ के लिए इट्स बेटर कि या तो हमें आज ही ये बता दें कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि हम हमेशा के लिए ऐसे सफरिंग में और जो हमारे मेंटल ट्रॉमा में नहीं रह सकते हैं। जो भी पंचायतों को आप एम्पावर करना चाहते हो, ये तब तक नामुमकिन है जब तक आप नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ में जीआरएस, टेक्निकल असिस्टेंट्स, एमआईएस ऑपरेटर और पीओ जो प्रोग्राम हमें देता है, क्योंकि पंचायतों में इस वक्त जो है 75% से ज़्यादा लोग जो है वो अनपढ़ है। उनको पता ही नहीं है कि पीडीज क्या है, उनको पता ही नहीं है एफटीओ किस तरह करना है, उनको ये भी पता नहीं है प्लान और नॉन प्लान क्या है, नरेगा में क्या है, 14th एफसी में क्या है, आईडब्ल्यूएमपी में क्या है, ये इनको पता ही नहीं है। जब तक इनको ये सहायता नहीं करते हैं ये जो हमारा नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ है, तब तक ग्राउंड पे जो है कुछ काम जो है नहीं हो सकता है। कहन मतलब कहन कम छन तिस गलत गसान इम स्ट्राइक पे इम त्रयन अख नजर क्या डायरेक्टर साहबस बेति गुजारिश करान एसीडी साहबस, कमिश्नर सेक्रेटरी साहबस, आरडीडीएस तो खुदारा यमन से करें इंसाफ। टंगमर्ग के तहसील कारहमा के हैंग राजपुरा के लोगों ने महकमे पीएचई के खिलाफ एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि गुज़िश्ता 40 सालों में पहली बार 2011 में एक स्कीम के तहत पीने के पानी के लिए 3 इंच पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी हुई थी। तब आज जब ये पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया तो मुतल्लिका महकमे ने 3 इंच के बजाय 1.5 इंच के पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया, जिस पर हैंग राजपुरा के लोगों ने एतराज़ जताते हुए एहतजाज किया। लोगों ने 3 इंच पाइपलाइन बिछाने का मुतालबा किया है। 2010 मज स्कीम गमज मंजूर अत कर मिली भगत जे सबन डी सबन यमो बड़ो बड़ो अफसरों यमो कर हजरत कारहम पे हजरत 2 आंजन पे मोतो नेस्प रोडस पे डेस्प रोड पे कर यमो काट लगो बी 2.5। हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारी माएँ बहनें बेचारी दूर दूर से पानी लेते हैं, गड्ढे लेकर जा रही हैं, यहाँ चश्मे सूख रहे हैं। जब मैंने प्रोजेक्ट देखा है तो 3 इंच वापस आया था प्रोजेक्ट, लेकिन जेई साहब हमारे साथ धोखा कर रहे हैं इस गाँव के साथ। मेरी गुजारिश है ये आला हुकाम तक एलजी साहब के पास मैंने भेजी है ये रिकमेंडेशन, और डीसी साहब के भी पास भी भेजा है, एसीडी साहब के भी पास भेजी है, लेकिन आज तक कोई उस पर बात नहीं हुई है। महकमे आपाशी में बतौर सीजनल लेबर काम कर रहे अफराद ने पुलवामा में अपने मुतालबात को लेकर खामोश एहतजाज किया। इन मजदूरों का कहना है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से वो महकमे आपाशी में बतौर डेली वेजर काम कर रहे हैं, वहीं मुस्तकिल करने के बजाय इन्हें सीजनल लेबर में तब्दील किया गया। एहतजाजी लेबर्स का कहना है कि इन्हें माहाना उजरत से भी महरूम रखा गया, जिसकी वजह से वो अपने कुंबे के हमरा फाका कशी पर मजबूर है। गवर्नमेंट आई, पीडीपी गवर्नमेंट आई के एलजी आओ वन आओ बदल एलजी, मगर वुनिक तान हेक सन प्रॉब्लम हल गसित कह, लिहाजा कर सोन अयाल वनकस मतलब सन बच्चे हेकन वनकस पढ़ित कह। 2-7 सासन पे तम वर शेरित कुन सात ईज दो या कुन सात ये बोड़ दो तम सात तम मिलान, बाकी हेकन पूरे फंडस मिलित कह, रेत पत रेत हेकन 2-7 सास मिलित कह। अ वेजेस वन बकायात 5 वरी 4 वरी बकायात, मगर गवर्नमेंट प्रेत सात हड़ताल करान, प्रोटेस्ट करान सोन मुतालबा बूझ तो, मगर वनुक तान सान मुतालबा बोतन कह। डेलीवेजर अशना तो फिक्रे कट बनो यमो सीजनल अशना समझी क्या हिसाब गई 97 पे कंटिन्यू डेलीवेज आर्डर तनख्वाह निमुत यमो बनो बी सीजनल अत तरह फिक्रे। मेहरबानी कर डील करान सान आर्डर दीता नजर अस नाइंसाफी गई। कुपवाड़ा जिले के कमगडी, हायहामा, भटपुरा के पोर्टरों ने आज कुपवाड़ा में लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। इन लोगों का कहना था कि पिछले 50 सालों से ये लोग बतौर पोर्टर काम कर रहे हैं, लेकिन नामालूम वजूहात पर आज लेबर डिपार्टमेंट के अफसरों ने मिली भगत करके दूसरे इलाकों के पोर्टरों को इन इलाकों में काम के लिए लाया, जिसकी वजह से इनके रोजगार पर शबखून मारा जा रहा है और वो फाका कशी पर मजबूर हो गए। पोर्टरों ने धमकी दी है कि अगर महकमे ने फौरी तौर पर इनका मसला हल नहीं किया तो वो अपने मवेशी और अपने बच्चों समेत सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। हमारा सब कुछ है, जो बाहर के घोड़े आते हैं वो इधर काम करते हैं, हमारे घोड़े को इसलिए जख्मी भी हुए, मरे भी 6 कचर, मेरी पहले भी मरी है 4, लंगड़ा भी हो गया मेरे को, देखो कमर भी टूट गया। और ये हमको गली बनाया, हमको नहीं है जाने का देते हैं, हमको नहीं लौट देते हैं, कुछ नहीं है, हमारे घोड़े घर में बेकार है। आज का बात नहीं है, जब से फौज आया उस वक्त से आज तक 80 साल का हम भीख मांगता है,
जिस वक्त नवगाम जाता था हम लोग जाता था, जब टंगडार जाता था उस वक्त रोड नहीं था, पैदल जाता था, टोल के लेता था लगड़ी फोल्ड, उस वक्त का हम काम करने वाला है। नवगाम जिस वक्त उठ गया उसका लड़ाई उठ गया, हम वहाँ गया, उड़ी में हम गया, लाशगढ़ ये केथा वाली ये लाशगढ़ वगैरह जगह ये तो आसान गली है। डीएलओ साहब ने हमको क्या किया कि उसने एक पोर्टर हमारे साथ था चप्पल में, और उस पोर्टर के साथ अपना लाइसेंस बनाकर उसको लाया, और उसके कोई खच्चर लाए किमशन पे, कुछ किमशन वो जोरहमा के भी हैं, मढ़हमा के भी हैं, आवरा के भी हैं खच्चर, और खच्चर लाए और काम एडजस्ट किया। हायन कुपवाड़ा की पंचायत कमेटी ने लोगों के हमरा डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। ये लोग बुनियादी सहूलियात के दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। लोग मुतालबा कर रहे थे कि इलाके में सड़क की खस्ता हाली से आवाम को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि पानी की दस्तयाबी का मसला भी दरपेश है। पंचायत कमेटी ने धमकी दी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर इनके जायज़ मुतालबात को हल नहीं किया गया तो वो मजीद एहतजाज करेंगे। ना कोई गाड़ी वहाँ आ सकती है, ना कोई गाड़ी जा सकती है। डीसी कुपवाड़ा के लिए हमें ये इसीलिए डीसी कुपवाड़ा के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसने पिछले 7 तारीख को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई को ऑर्डर निकाला, इनके लिए आपकी टैंकर लगा दो, वो आज तक नहीं आई। मैं 20 दिन से मैं एज ए पंचायत इलाके के लिए डिमांड कर रहा हूँ कि गाँव में एक टैंकर भेज दीजिए, ना वो वहाँ पर आग लग जाएगा, कोई आ नहीं सकता वहाँ इलाके में। इन्होंने यहाँ बहाना बनाया, अब टेस्ट कर लो, वो कर लो, ये लोगों की डिमांड पूरी कर नहीं सकते कि क्योंकि गवर्नर निजाम मेरी पूरी पंचायत इस वक्त रिजाइन देने के लिए तैयार है, मेरी पूरी पंचायत मेरे साथ है। इन्होंने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया गाँव में, हमें गाँव वालों ने बोला कि आप रिजाइन कर लो, हमें आपकी पंचायत जरूरत नहीं है, इसलिए हम मुतालबा कर रहे हैं। हफ्ते के अंदर अंदर हमारे मुतालबे पूरे नहीं हो गए तो हम रिजाइन करने के लिए तैयार है। कुपवाड़ा जिले के कलारोस बड़ीपुरा मोहल्ले में तस्लीमा नामी एक खातून अपने 6 बेटियों समेत एक ही कमरे में रिहाइश पजीर है। सरकार और साहिब सरवत लोगों से मदद की अपील कर रही है। यह तस्लीमा बेगम जो इस कोविड-19 में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और मकान ना होने की वजह से सिर्फ एक ही कमरे में रिहाइश पजीर है। बदकिस्मती का आलम यह है कि एक कमरा भी खस्ता हो चुका है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि तस्लीमा के शौहर जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, अब इसके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, लिहाजा अब ये गरीब कुंबा अज़राए इंसानियत सरकार और साहिब सरवत लोगों से मदद की अपील कर रहा है। मे कमरा सह पड़ नबर किन फलावर सत गंडित मे तमन बचन योत मे वक्त कह चीज आसान या कह तम वाल बह नख तम 3 जवान 3 लक्चे लक्चे बस तंग गमस मे मुसीबत मे गम खतर कि मदद गम खतर बह कर अपील। शोपिया के गरीब कुंबे को ऑनलाइन जालसाजी के जरिए 80,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। वो नंबर जिसने खुद को बैंकर के तौर पर मुतारुफ कराया उससे अपना OTP शेयर करने को कहा और OTP की शराकत से 5 बेटियों के बाप की 80,000 की रकम ज़ाय हो गई। डार ने बताया कि इसने अपनी बेटी की शादी के लिए रकम जमा करने के लिए कुछ जानवर बेचे, लेकिन बदकिस्मती से यह सब कुछ हो गया। इन्होंने हुक्काम से मदद की अपील की। डार का मामला नया नहीं है जो मंजरेआम पर आया, लेकिन हालिया अरसे में मुतादिद मामला सामने आए जहाँ जाली अनासिर ने बेगुनाह लोगों को धोखा दिया और लाखों रुपए लूट लिए। यह 10 तारीख फोन ये अकाउंट सो बंद तो खोलो तो यह तिम नंबर पता कह मुड़ इंसान तो मे चारवाई कि अत मे बच्चे खानदर तथ पोस मे अत पुलिस गुजारिश कर अगर तम कुछ हेकन तम कड़ित मे हेकन कुछ मदद तम कर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।